अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। మూడో దశలో ఉండగా పాల్గొనడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో ఈ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్లో ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఇవన్నీ కూడా మానవాళికి దోహదపడే విధంగా ఈ ఛాలెంజ్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మూడు మొక్కలు నాటడం, అంతటితోనే కాకుండా దాన్ని పెంచి పోషించి అంటే దాని బాగోగులు చూసుకోవడం, నర్చర్ చేయడం అనేది కూడా ఈ గ్రీన్ ఇండియాలో భాగంగానే కన్సిడర్ చేయబడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ టేకెన్ అప్ బై ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గారు అండర్ ది ఏబుల్ గైడెన్స్ ఆఫ్ సీఎం కేసీఆర్ గారు. సో ఇలాంటి కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని కూడా భాగస్వాములుగా చేసి ఈ కార్యక్రమంలో ఈ మానవాళికి దోహదపడే విధంగా మమ్మల్ని కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు పర్సనల్గా కానీ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కానీ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో ఇది నేను ఫస్ట్ ఈ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ అనేది వినడం కానీ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత మనం ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఇది ఏదైతే ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్ ఉందో ఇదంతా కూడా చాలా బేరన్గా ఉండింది. ఇదంతా కూడా నీట్గా కల్టివేట్ చేసుకొని దాదాపు ఇప్పుడు 1800 మొక్కలు ప్లాంట్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని కూడా మేము కానీ ఆఫీస్ స్టాఫ్ కానీ అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా దగ్గరుండి దీన్ని పోషిస్తున్నారు ఈ ప్లాంట్స్ అన్నింటినీ కూడా. సో ఫ్యూచర్లో ఇది ఒక గొప్ప గ్రీనరీగా కూడా చేయబడుతుంది, అందరూ కూడా చూస్తాము. సో బేసిక్గా ఈ తెలంగాణలో దాదాపు ఒక 4.5% ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్పేసి ఈరోజు చదివిన ఒక ఆర్టికల్లో నేషనల్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి ఒక ఆర్టికల్లో చదివాను. సో ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ లైక్ 25%, నవ్ 29% కవరేజ్ ఉంది తెలంగాణలో. అండ్ ఇట్ స్టూడ్ 5th, ఈ గ్రీనరీలో కూడా 5th పొజిషన్లో ఉంది. సో ఐ విష్ ఎవ్రీవన్ ది సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ దీన్ని మనం ఫస్ట్ వచ్చే విధంగా కృషి చేయాలి. ఇది చేయాలి అని అంటే ఈ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ఒకరు ఇస్తే అనే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళు సెల్ఫ్గా తీసుకొని మనం ఒక 3 మొక్కలు నాటి అవన్నీ కూడా పెంచి పెద్ద పోషిస్తే మనము మన పిల్లలకి ఇచ్చే గిఫ్ట్గా కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకనంటే గుడ్ అట్మాస్ఫియర్, గుడ్ ఎయిర్, గుడ్ హెల్త్ అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంది. అది కేవలం ఓన్లీ ఈ గ్రీనరీతోటే వస్తుంది. ఈ పొల్యూషన్స్ లేకుండా ఇప్పుడు వచ్చే ఇలా ఉన్న డిజీజ్ అన్నీ కూడా కారణము పొల్యూషన్ వల్ల. వాటర్ అంటే ఏదైనా వాటర్ పొల్యూషన్ కావచ్చు, ఫుడ్ పొల్యూషన్ కావచ్చు, అన్నీ కావచ్చు. సో ఈ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ వీటన్నిటికీ కూడా ఆన్సిబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ సీఎం కేసీఆర్ గారు అండ్ ఎంపీ జోగన్పల్లి గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఈ ఛాలెంజ్లో భాగంగా నేను మరి ఒక ముగ్గురికి ఈ ఛాలెంజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒకటి మన మేడ్చల్ కలెక్టర్ వాస వెంకటేశ్వర్లు, 2 పెద్ద మంచిర్యాల కలెక్టర్ భారతి గారు, అండ్ 3 డీసీపీ క్రైమ్ సైబరాబాద్ రోహిణి గారు. సో వీళ్ళ ముగ్గురికి కూడా నేను ఛాలెంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్లో వాళ్ళు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఎంత వస్తాయి గన్నాస్తుంది చెప్పడం జరిగింది. ఆయనకు భయం పెట్టేసి తర్వాత ఆయన కళ్ళంతా క్లోజ్ చేసినారు, బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేసి ఆయనకు ఆఫీస్ పేట్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఆఫీస్ పేట్ తీసుకెళ్లి అక్కడ ముందు కిడ్నాప్ చేసే ముందు ఎవరు ఈ కంప్లైంట్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఫాదర్ ఫ్రెండ్ ని డీటెయిల్స్ ఇస్తూ ఆయన ఎవరు ఏమో ఆయన ఒక టెర్రరిస్టు, ఆయన ఒక డ్రగ్స్ లో డీల్ చేస్తారని చెప్పి ఆయనకు భయపెట్టిసినట్లు చేయడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళు హఫీజ్పేట్ లో ఉన్న ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్ స్టోర్ కు అక్కడ తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అక్కడ తీసుకెళ్లిన తర్వాత బ్లైండ్ ఫోల్డ్ అయిన తర్వాత ఈయన రంగంలో దిగినారు. ఎవరు ఈ రఘు వర్మ అండ్ జోరే సింగ్ ఇద్దరు మిలిటరీ యూనిఫామ్ లో వచ్చేసి పెద్ద పెద్ద వెపన్స్ తీసుకొచ్చినారు. ఆ హ్యాండ్ కప్స్, పెద్ద వెపన్స్, వాకీ టాకీ చాలా హంగామాతోనే ఎంటర్ అయినారు. ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈయనను భయపెట్టేసి మీ ఫాదర్ ఫ్రెండ్ కి బాగా లింక్స్ ఉన్నావు, ఆయన బాగా వాంటెడ్ క్రిమినల్, ఆయన నోటోరియస్ క్రిమినల్, ఆయన గురించి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అయ్యా లేదంటే మీకు ఎన్కౌంటర్ చేస్తాము, మీకు అందరు కూడా కాల్ చేస్తానని చెప్పి భయపెట్టడంతో
తర్వాత అదేమంతా పెద్ద చెప్పలేదు. తర్వాత ఆయన దగ్గర ఉన్న 26,000 రూపాయలని లాక్కొని మీ పైన మళ్ళీ మన స్టేషన్లో మీకు స్టేషన్ వ్యాలీ ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఆయన దగ్గర నుంచి 26,000 రూపాయలు తీసుకొని తర్వాత బిహెచ్ఎల్ దగ్గర ఆర్సీపురం దగ్గర డ్రాప్ చేసి తర్వాత ఆయన దగ్గర ఉన్న ఒక కార్ కూడా ఈ కంప్లైంట్ కార్ ఉంది కదా టాటా హ్యారియర్ వెహికల్ కూడా తీసుకెళ్లి ఆయన ఊరికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఊరికి పోయే ముందు ఈ ముగ్గురు అక్యూజ్ ఎవరైనా ఉన్నారు అదర్ అక్యూజ్ రాజేష్, రామకృష్ణ ప్లస్ జోరే సింగ్ ని బంజారా హిల్స్ లో డ్రాప్ చేసి ఊరికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అక్కడ కూడా ఈ కంప్లైంట్ आज हम लोग वक्फ बोर्ड पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है एलबी नगर आटो नगर में 51 एकड़ 17 गुंडास लैंड है वक्फ बोर्ड की, जिसका गज़ीट में रिकॉर्ड है। ये गज़ीट में रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, सर्वे नंबर के साथ मौजूद है। 51 एकड़ 17 गुंटास लैंड में से सिर्फ 1.5 से 2 एकड़ लैंड अभी बाकी है। सारी की सारी ज़मीन लैंड ग्रैबर्स कब्ज़ा कर लिए, जिसमें से कुछ वहाँ के राउडी शीटर्स कुछ लैंड ग्रैबर्स करे और बाकी की ज़मीन सबसे बड़े लैंड ग्रैबर गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर गवर्नमेंट की तरफ से हो रही। आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि देश के किसानों की जो उपज है, जो क्रॉप है, वो खुले बाजार में आए और उनके जिन सामानों की, जिन इक्विपमेंट्स की पूजा करते हैं किसान, उसको ये लोग खुलेआम जला रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने ये जो बिल पार्लियामेंट में लाए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री ये भूल रहे हैं कि उन्हीं के बरसों पुराने उनके एक साथी शिरोमणि अकाली दल उनका साथ छोड़कर चले गए इसी बिल को की बुनियाद के ऊपर, किसानों के इस मसले के ऊपर। तीसरा ये है कि जेडीयू जिसके साथ बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, वो भी इस पर अपनी नाखुशी का इजहार किया। चौथी बात जो प्रधानमंत्री मोदी देश को नहीं बता रहे हैं कि किस तरह राज्यसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती के ज़रिए उन्होंने इस बिल को पास करवाया। सारे देश देख रहा था कि ये कहा गया कि मेंबर्स अपनी जगह पर नहीं, मेंबर्स राज्यसभा में मेंबर्स जगह पर थे, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। तो हर एतबार से प्रधानमंत्री का ये जो कानून उनकी सरकार ने बनाया, इसका किसान को फ़ायदा पहुंचाना मकसद नहीं है, बल्कि जो कॉरपोरेट लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री से बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल को पार्लियामेंट में लाकर, बावजूद इसके कि उनके सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में, उन्होंने उसको पास करवाया। सर, ये आपको क्या लगता है जब इतना बुरा है ये बिल, तो
कृषि प्रधान एक तरह से स्टेट है बिहार, जहां आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, आपको लगता है कि उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा? नहीं, बीजेपी आरएसएस, बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आरएसएस है। आरएसएस के जो किसान उनका संघ का जो हिस्सा है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उनको समझाए ना। प्रधानमंत्री के आरएसएस को नहीं समझा सकते। अगर प्रधानमंत्री वो बनते हैं तो आरएसएस की वजह से, तो आरएसएस को समझाएं। इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि हर सेक्शन इस जो उन्होंने बनाया उसका विरोध कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। सर, ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां वो कर रही हैं, किसानों में क्या आपको लगता है वाकई इस बिल को लेकर गुस्सा है? तो आप एक काम करिए ना, प्रधानमंत्री को जरा पंजाब जाने के लिए बोलिए, हरियाणा जाने के लिए बोलिए। और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर क्यों कह रहा है कि बाहर के लोग क्यों नहीं आ सकते? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस तरह का ट्वीट करके अपनी बेबसी और अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं देश के सामने। सर, आपने एक ट्वीट किया है बिहार इलेक्शन को लेकर और ये सब, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना हम यही चाह रहे हैं कि जब कभी भी इलेक्शन आते हैं, हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, डेमोक्रेसी में हम लोग भरोसा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं और अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए, अपने राइट्स को हासिल करने के लिए। तो अचानक ये सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं मगर प्रैक्टिकली नहीं है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि बी टीम है, फलां टीम है। हर डेटा इस बात को प्रूव करता है कि एमआईएम के कंटेस्ट करने से बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि एमआईएम को फायदा हो रहा है। और सेकुलर पार्टीज झूठा इल्जाम लगाती हैं, एम्पिरिकल डेटा है। बिहार में हम लोग एक पार्लियामेंट की सीट पर लड़े और वहां पर बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती, और पूरे सीटों पर, बाकी सीटों पर एनडीए कामयाब हो गई। तो हमको बताइए ये कांग्रेस आरजेडी वाले, तो भाई आप क्यों नहीं हरा सके बीजेपी को वहां पर? हम तो एक ही सीट लड़े। महाराष्ट्र में हम एक सीट लड़े, औरंगाबाद में, वहां पर इम्तियाज जलील ने 22 साल के एमपी शिवसेना के को हरा दिया, और फिर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के साथ गोद में बैठ गई है, पावर शेयर कर रहे हैं। वो क्या सेकुलरिज्म है? आप मंदिर निर्माण के लिए आप ईंट भी जाते हैं, वो सेकुलरिज्म है? ये सब इनकी हिपोक्रेसी है और देश इसको देख रहा है। और मुझे यकीन है कि अब के बार बिहार के इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इनका सेकुलरिज्म, एक इनका हिपोक्रेसी है, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। बाई इलेक्शन हम जीतते हैं, वहाँ बीजेपी को हराते हैं किशनगंज की, तो ये इनकी बौखलाहट है और दिक्कत आ रही है। सर, आप हमेशा बीजेपी को रोकने की बात करते हैं, बिहार में आप कर सकते थे, बीजेपी को रोकने का आप कर सकते थे, कुछ पार्टियों से हाथ मिला सकते थे, गठबंधन कर सकते थे, लेकिन आप जिस तरह से लड़ रहे हैं, आपसे ये आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी को चलिए, अरे हमने तो एक बिहार के एक बहुत बड़े लीडर के साथ, उनकी पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस। हमने देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हमारे कन्वीनर हैं। ये वो आदमी है जो कर्पूरी ठाकुर के लिए अपनी सीट छोड़ दिया था, 5 टर्म के एमपी है। हम उनके साथ, चलिए आज आप हमसे करिए। आप तो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, मगर हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के साथ अलायंस किए हैं और हमको पूरा यकीन है कि बिहार की जनता हमको अपनी मोहब्बत से और अपने भरोसे से नवाजेगी और आप देखते रहेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सर, बिहार चुनाव ही वजह है कि आपने मथुरा का राम मंदिर का पटाक्षेप हो गया? ना, लेकिन नहीं, गलत बात है ना, गलत, बिल्कुल गलत बात है। मैं तो, आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आपने सवाल किया था प्रमोद साहब, मैंने उस वक्त कहा था कि ये जजमेंट एक तो हिंदुत्व, इस देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का रास्ता फराहम करेगा। मैंने ये भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से पुराने इश्यूज खुलेंगे, जिसमें काशी और मथुरा का, और सच साबित हुआ मेरा बात बोल रहा हूं। और वो लोग कोर्ट को गए। जब एग्रीमेंट हो चुका है ईदगाह कमेटी के साथ, बाज़ाब्ता पूरा एग्रीमेंट की मैंने कॉपी ट्वीट की, अब क्यों मसला उठा रहे हैं? क्योंकि उनको हिम्मत मिली इस जजमेंट के बाद कि वो ये समझ रहे हैं कि बिलीफ को कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, और उनको उम्मीद ये लगी हुई कि दोबारा इस मसले में कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बिलीफ को अपहोल्ड करेगा और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ एविडेंस को कोर्ट बाजू रख देगा।
हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि पार्लियामेंट का 1991 का रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेसेस थे, चाहे वो हिंदुओं के हो, मुसलमानों को, सिख के हो, ईसाइयों को, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो क्या मोदी सरकार कोर्ट से जाकर कहेगी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के तहत वो जो केस डाला गया वो मेंटेनेबल नहीं है, और राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा है इस एक्ट को, तो क्या मोदी सरकार खुले अल्फाज में कहेगी या नहीं कहेगी, या फिर वो फिर इसी तरह से इस इशू को उठाएगी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए? सर, आप भी तो सियासी मुनाफे के लिए इस इशू को उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो 1991 एक्ट को सामने रखकर कह रहा हूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को कहा था कि ये मसले उठेंगे, और मैं सच साबित हो रहा हूं। अब देखना यह है कि मोदी सरकार उस पार्लियामेंट के कानून का लिहाज रखते हुए उसको अमल करेगी, या फिर अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह से ये आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करते रहेगी, ताकि देश दोबारा वो जो टर्मोइल से गुजरा है 89 से 80 से लेकर 1992 उसके बाद, क्या उसको दोबारा झोंकना चाहेंगे उस आग में? ये तो मोदी सरकार को बताना पड़ेगा। सर, एक और घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। इस देश में जब तक इस देश के मर्द लोग महिलाओं के ताल्लुक से, खवातीन के ताल्लुक से अपनी ज़हनी गंदगी को साफ जब तक नहीं करेंगे, ये जुल्म होता रहेगा। और ख़ास तौर से जुल्म होता है उन महिलाओं का जिनका ताल्लुक दलित तबके से, माइनॉरिटीज से, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से होता है, और ये बढ़ता जा रहा है, रुकने वाला नहीं है, बढ़ता जा रहा है। और तीसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में ठोक दो की सरकार है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं करते। ठोक दो, क्या ठोका आपने? क्या आपने रोका इन लोगों को? 19 साल की लड़की, इतना बुरी तरह उससे बर्ताव किया गया उससे। आप बताइए उसका क्या हो रहा है फिर? आप बताइए, उसका रेप हुआ, उस बच्ची के स्पाइनल कॉर्ड तोड़ा गया, जबान को काटा गया। क्या कर रही उत्तर प्रदेश? ठोक दो बोलेगी। ठोक दो से नहीं होता है, आपको इन्वेस्टिगेशन सही करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा इन ऑफेंसेस से पहले। आपकी पुलिस को तो आपने छूट दे दिया है कि गोली मार दो। अरे गोली मारने से होता है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि कानून का डर ऐसे शैतानों के दिलो दिमाग पर पैदा होना जरूरी है। इनको कानून का डर ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया कि ठोक दो। ये ठोक दो की पॉलिसी इन वाकयात को नहीं रोक पाएगी जब तक कानून का डर नहीं पैदा होगा। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में एक डीजी लेवल का ऑफिसर, उसका वीडियो वायरल होता है, वो अपने घर में अपनी वाइफ को पीटता है। अरेस्ट क्यों नहीं करते उसको आप? कि बोले कंप्लेन करो। कंप्लेन क्यों करेंगे? जब सारी दुनिया ने उसको वीडियो देख लिया तो कंप्लेन की जरूरत है सरकार को। और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हम उनको ड्यूटी से रिलीव कर दिए। जो पुलिस जिसकी हिफाजत करना है वो अपने घर में अपनी बीवी को पीटता है। क्या कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं महिलाओं में आप? और उत्तर प्रदेश में तो आपकी ठोक दो की पॉलिसी है। तो ये बहुत जरूरी है कि पुलिस और कानून का डर उस वक्त पैदा होगा जब ये ठोक दो की एनकाउंटर की पॉलिसी खत्म होगी। जब तक आप एनकाउंटर ठोक दो करते रहेंगे, इन लोगों में क्या डर पैदा हो रहा है? शमशाबाद में आपने ठोक दिया, मोइनाबाद में इंसिडेंट हो गया। तो इन पुलिस का और कानून का डर उस वक्त पैदा होगा जब रूल ऑफ लॉ पर इंप्लीमेंटेशन होगा।